औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने एक और लेसन लेकर आया हूँ और इस लेसन का नाम है द मर्चेंट ऑफ विंग्स। द मर्चेंट ऑफ विंग्स। और इस लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज़ अ ड्रामा for the students of 10th class, but not only for the 10th class students but also for the students of PG level and the students of graduation level. They can take the help of this video lecture. And ये मैं भी आपको बताऊं कि it's not only mandatory for class 10th but it has been prescribed for the class 10 students uh, as a syllabi pattern of J&K board. But so far as this drama is concerned, if we will broadly go to his actual drama that consists at least 400 pages, but it has been abridged. This has been abridged and reframed or adapted by Charles Lamb for children's story. He is famous for children's story, Charles Lamb. And the Merchant of Venice, one of the important drama and one of the greatest drama we can say in the history of English literature Shakespeare has ever written. And before going to start, I will tell you one thing, that drama is meant for conflict. Drama is meant for conflict. When there is conflict in the drama, it means that drama has reached its climax or reached its final position that usually spectators need to know. And without wasting much time, I would like to go through this drama, Shakespeare's The Merchant of Venice. The Merchant of Venice. It is originally written by, as I have already told you, it's originally written by William Shakespeare and then abridged and adapted by Charles Lamb for children's story. So it's a drama written in between 1596 to 1598, and it is one of the tragic comedy drama. It is one of the tragic comedy drama, means there are tragic events as well and there are comedial events as well in this drama. अब इसके अंदर क्या क्या है? देयर इज अ कैरेक्टराइजेशन, देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ ड्रामेटिक एंडिंग, that's very important, which are very ingredients, which are the one of the ingredients of the story, that how drama takes place. And as I have told you, that conflict is an important thing that we usually have in this in any drama. And before इससे पहले कि हम ड्रामा की ओर चले जाएंगे, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मेजर कैरेक्टर्स इसके अंदर है। क्या क्या है? शैलॉक जो है, शैलॉक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, हीरोइस्टिक कैरेक्टर। एंटोनियो दूसरा इसका है, वो भी हीरोइस्टिक कैरेक्टर है। एंड बोथ बिलोंग टू द प्रोफेशन ऑफ मर्चेंट, यानी मर्चेंडाइज, दे बोथ बिलोंग टू द प्रोफेशन ऑफ मर्चेंडाइज। दोनों मर्चेंट होते हैं, एंटोनियो भी और शैलॉक भी। फर्स्ट कैरेक्टर एंटोनियो, उसके बाद शेलॉक, यानी कि शेलॉक। मगर शेलॉक जो है ये डेविलिश नेचर का आदमी होता है, बड़ा खतरनाक आदमी होता है, और सौदागरी में इसने बहुत खतरनाक नाम कमाया होता है, क्योंकि ये सूद से पैसा सिर्फ लोगों से बटोरता है। यानी कि ही बिकम्स यूजर in his profession, that he lent money on the basis of interest and takes as much interest as he wants. तो जो एंटोनियो है ये भी मर्चेंट होता है, लेकिन ये गरीब लोगों को मदद करता है, जो मुश्किल हालात में होते हैं उन्हीं की मदद करता है। देन उसका एक दूसरा कैरेक्टर है बिसानियो। बिसानियो जो होता है, इट्स अ फ्रेंड ऑफ ही इज द फ्रेंड ऑफ एंटोनियो। एंड देन वी हैव पोर्शिया, ब्यूटीफुल लेडी ऑफ बेलमोंट। Beautiful lady of Belmont, a beautiful girl, intelligent girl of Belmont. She was deeply in love with Bassanio. And then Mr. Nirasa is a maid of she is a maid of Portia. ये पोर्शिया की नौकरानी होती है। एंड देन बिलेरियो, यहाँ पर एक है और कैरेक्टर है जो ब्रदर होता है, ब्रदर कजन
यानी कि कजन ब्रदर ऑफ पोर्शिया, उसका होता है। देन डॉक्टर बेल्थेसर, हाँ ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट यू नीड टू नो दैट ही प्लेज द रोल। डॉक्टर बेल्थेसर इसमें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। डॉक्टर बेल्थेसर क्या काम करता है, यानी कि ही इज डॉक्टर बेल्थेसर इज एक्चुअली अ लायर, and this lawyer is not available during the trial of this case when the case is being pleaded to the court in the court against Shylock. तो उस वक्त डॉक्टर बेल्थेसर खुद नहीं होता है, एंड पोर्शिया इज इन डिसगाइज ऑफ डॉक्टर बेल्थेसर, यानी कि वो उसका समझ लीजिए वो डॉक्टर बेल्थेसर के रूप में आ जाती है। कौन? पोर्शिया। और फिर डॉक्टर बेल्थेसर का यानी कि फर्ज अंजाम देता है, यानी कि मीन इज दैट डॉक्टर पोर्शिया बिकम्स डॉक्टर बेल्थेसर ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ होल केस इन द ड्रामा। और फिर उसी के साथ उसकी जो मेड नौकरानी होती है निराशा, उसको भी उसके कपड़े मिल जाते हैं। ये आपको मैं स्टोरी में बता रहे जा रहा हूँ। तो डोमिनेंट इसके ऊपर मैं बात बता रहा हूँ कि फिर जब स्टोरी शुरू होती है, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कि दोनों मर्चेंडाइज का काम करते हैं। बोथ एंटोनियो एंड शैलॉक बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन इन द सेम सिटी विंस। विंस जो है विंस सिटी में दोनों काम करते हैं, लेकिन जो शैलॉक है ही बिलोंग्स टू जीव्स, एंड देन दिस शैलॉक बिलोंग्स टू जीव्स एंड एंटोनियो belongs to the Christians. तो अब वो लोगों को पैसा, he becomes usurer, Shylock, and gives money to the people, lent money to the people and takes as much interest as he wants। ये मैंने आपको बताया, and लूटता भी है। and जो एंटानियो है ये गरीब लोगों की मदद करता है, जैसे बताया कि सब लोगों को मदद करता है, गरीब लोगों को मदद करता है, मुश्किल हालात के लोगों को मदद करता है। फिर शैलॉक जो है ये डिविलिश नेचर का होता है, इसको बहुत परेशानी हो जाती है, और इसको यानी कि ये जो है कौन, एंटानियो इसको तब भी बख्शता नहीं है। एंटानियो इसे मतलब कहता है कि यू आर ए स्कैवेंजर, यू आर ए कर, यू आर मोंग्रल, यू आर लाइक दैट, एंड ही वाज स्पेटिंग ऑलवेज ऑन हिम, कि उसके ऊपर थूकता था, लांत मारता था, कर्स, ही वाज ऑलवेज यूजिंग हैव यूज्ड द कर्स्ड लैंग्वेज अगेंस्ट शैलॉक एंटानियो। तो बहुत ज़्यादा परेशान करता था उसको, हर पब्लिक भीड़ में उसको यानी कि थूके मारता था, लानत बरसाता था। तो ये शैला को बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन लास्ट पे एंटानियो ही फंस जाता है, क्योंकि एंटानियो का जो भी गलबा होता है, पैसा होता है, वो उसने कार्गो ट्रेड में लगाया होता है। और एक दिन की बात जो है, ये जो बिसेनियो होता है, ही वॉज डीपली इन लव विद पोर्शिया। ये पोर्शिया के साथ जबरदस्त प्यार होता है इनको, बट पोर्शिया वॉज इन बेलमोंट सिटी। पोर्शिया वॉज इन बेलमोंट, दैट इज क्वाइट सेपरेट, वो भी वीनिस का ही इलाका है, तो उससे दूर थोड़ा था, तो जाना पड़ता था वहां पर। तो वो अब इसके पास पैसा नहीं था, बेसेनियो के पास, ही वॉज नॉट हैविंग मनी इन ऑर्डर टू प्रपोज पोर्शिया, because he was deeply in love with her. As such, he was not having too much money in order to propose Portia, so that he might have got the hand of Portia, and the wedding would have started. So this was the problem for Bassanio. तो अब बिसेनियो आया किसके पास? एंटानियो के पास। ए एंटानियो, मुझे पैसा दीजिए, गिव मी मनी ऑफ 3000 डेकेट्स। डेकेट्स इज द करेंसी ऑफ वेन्स, या आप फ्रांस की ले लीजिए। तो ये उस वक्त की बात है। तो 3000 डेकेट्स मुझे दीजिए, आई विल गो बेलमोंट सिटी एंड आई विल प्रपोज पोर्शिया इन ऑर्डर टू गेट हर हैंड, कि उसका हाथ, मतलब शादी के लिए हाथ मैं उससे मांगने जाऊंगा, तो मुझे जल्दी से आप 3000 डेकेट्स दीजिए। ये किसने कहा? बेसेनियो ने एंटानियो से। बट एट द सेम टाइम एंटानियो वाज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ मनी और रेडी कैश इन ऑर्डर टू हेल्प बेसेनियो। तो इसके पास मतलब कैश नहीं था, जो हाजिरी जिसको हम कहेंगे, हाजिर रकम नहीं थी इसके पास। तो इसने बड़ी परेशानी इसको वहां पर हो गई। तो इसने क्या किया काम, इस एंटानियो ने, क्योंकि ही हैड स्पेंट ऑल द मनी ऑन कार्गो ट्रेड्स, एंड इवन दो कि द शिप वर ऑन जॉब, तो दे वर सेंट फॉर द कार्गो ट्रेडिंग। तो ये कार्गो ट्रेडिंग पे लग गए थे इसके तमाम जहाज, और इसका पैसा सब he had invested all the money on that very trade।
तो फिर इसके पास पैसा नहीं था, अब ये परेशान हो गया, तो ये सीधा चला गया एंटानियो इसके पास, बेसेनियो लेकर इसके पास, शेलॉक के पास। तो बेसेनियो को लेकर गया तो कहा इसने कि मुझे आप 300 डेकेट्स, यानी कि एंटानियो ने शेलॉक से कहा जस्ट गिव मी 3000 डेकेट्स, आई विल पे यू बैक विद द प्रॉपर इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट यू नीड, हाउ मच इंटरेस्ट यू नीड आई विल रिटर्न इट बैक, तो मैं आपको फिर वापस ये कर दूंगा। ये किसने कहा? ये एंटानियो ने कहा। तो वहां से शैलाक उठा कि आप मुझसे 3000 डेकेट्स मांग रहे हैं, सो व्हाट्स द नीड, आप तो मुझे, मेरे ऊपर पब्लिक में आप मुझे बहुत जलील उखार करते हो, आप तो लानत बरसाते हो, आप तो गाली देते हो, एंड रियल्टो एक्सचेंज, रियल्टो जो पर जो ट्रेडिंग होता है वहां पर भी इसने इसको शैलाक को बहुत ज़बरदस्त तरीके से यानी इसकी बेइज्जती की है। इसको कहा कि तुम गंदी नाली के कीड़े हो, तुझ पर लानत हो, एंड यूज्ड टू स्पिट ऑलवेज ऑन हिम। तो उस वक्त भी इसके ऊपर रियल्टो के दौरान भी इसने कहा कि आज तुम जीव के पास कैसे आ गए, हाउ डिड यू कम टू मी इन फॉर गेटिंग हेल्प ऑफ 3000 टिकट्स। तो इसने कहा मैं आपके पास नहीं आता, लेकिन मैं इसलिए आया, मेरा दोस्त मजबूरी में पड़ गया हूँ, मैंने तमाम पैसा जो है वो मैंने इन्वेस्ट किया है कार्गो ट्रेडिंग पे, आई हैव इन्वेस्टेड ऑल द मनी ऑन कार्गो ट्रेडिंग एंड द शिप्स और ऑन जॉब, सो तो आप मुझे 3000 टैक्स। तो इसने कहा जीव के पास क्या है, आप तो मुझे मतलब गैर कौमी आदमी समझते हो, तो ये कैसे पॉसिबल है, और आप बोलते हो। तो यहाँ पर फिर इसने कहा नहीं तुम बताओ, मैं तब भी फ्यूचर में भी आपके साथ ऐसा ही करूंगा, मैं आपको फ्यूचर में भी इसी तरह गाली गलौज दे दूंगा, क्योंकि तुम सूद से पैसा कमाते हो, तुम्हारे पास कोई इंसानियत नहीं है, यू डोंट बिलोंग टू द ह्यूमन वर्ल्ड, you don't have humanity because you are a usurer by profession and you have amassed all the money from the people। तो इसने कहा इसको मैं फ्यूचर में भी तब भी आपको ऐसी ही बात करूंगा कि आप यही मत यकीन रखें कि बस अब हमारी दोस्ती हो जाएगी, नो, देयर विल बी इम्यूनिटी एज एट ऑल, कि दिस विल नॉट एंड, ये खत्म नहीं हो जाएगी। और उसके बाद फिर इसने कहा इसको कि चलो आप दे दो। तो इसने कहा चलो मुझे आप पर तरस आता है कि आपने इतने सारे पैसे लिए, चलो आप आज हम मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं, सो आई एम जस्ट स्प्रेडिंग द लव, तो आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड फॉर द लव। इसने कहा शेलाक ने, तो इसने कहा चलो ठीक है 3000 डेकेट्स देंगे। किसी ने कहा कि मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए, 3000 डेकेट्स इससे ले लेता है शेलाक से एंटानियो, क्योंकि इसके साथ बेसेनियो था और उसको वो पैसा उधर लेना था। तो यहाँ पर ये आ जाता है एंटानियो ने इसे कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक यूर 3000 डेकेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, नो, मैं आपको बॉन्ड लिखकर, माई होल ट्रेडिंग इज ऑन जॉब, माई शिप्स आर ऑन जॉब, आई हैव इन्वेस्टेड ऑल द मनी ऑन ट्रेड, तो अब मैं आपसे क्या करूँगा। तो इसने कहा इसको नो, कि मैं मुफ्त में पैसा नहीं लूंगा, आपको पेनल्टी दूंगा इफ आई विल नॉट रिटर्न द सेम अमाउंट ऑफ पेमेंट विद इन ए स्टुपुलेटेड पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, कि अगर 3 महीने के अंदर मैंने ये 3000 टिकट्स आपको वापस नहीं दिए, तो मैं आपको एक बॉन्ड लिख कर देता हूँ कि कोर्ट में, कि यू कैन टेक द फ्लैश ऑफ माई बॉडी फ्रॉम एनीवेयर, बॉडी फ्रॉम द चेस्ट, तो ये आप ले सकते हैं, सो यू कैन टेक द पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम माई बॉडी, तो दिस इज द बॉन्ड दैट आई एम गोइंग टू साइन। तो बॉन्ड साइन हुआ बिटवीन, एंड ही वॉज हैविंग ए डेविलिश नेचर। उसने इसको कहा चलो कोई बात नहीं है, आज नफरत नहीं है, आज हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। उसने कहा नहीं, तो एंटोनियो, तो वहां से पर बेसेनियो ने इसे कहा आपने अपनी जान रिस्क में डाली, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, कि आपने अपनी जिंदगी रिस्क में क्यों डाली। और इसने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं अपनी रिस्क, ये जान मैंने अपनी रिस्क में डाली है, लेट इट बी सो, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां से क्या बात होती है, वहां से फिर यही बात आगे बढ़ती है किसके लिए, बेसेनियो के लिए। और इसने कहा कि कोई हमने बॉन्ड साइन कर दिया है दैट इफ आई फेल टू पे 3000 टिकट्स 3000 tickets in time, in a stipulated period of time 3 months, then Shylock is able to take the pound of flesh from my body, ये बॉन्ड पे साइन होगा। एंड देन उसके बाद बेसेनियो चला गया बेलमोंट सिटी इन ऑर्डर टू प्रपोज, ये पोर्शिया के पास चला गया वहाँ पर, तो उसने उसको वहाँ पर प्रपोज किया और उसने उसको कहा कि तो अब शादी होने की तैयारी में लग जाएंगे। उसने कहा चलो ठीक है, तो वी विल फिक्स द डेट फॉर द वेडिंग। तो
तो जो ही वो वहां से, अब उसने कहा कि ठीक है, नो आई हैव एक्सेप्टेड, पोर्शिया ने कहा आई एक्सेप्टेड योर प्रपोज, नो आई एम रेडी फॉर योर वेडिंग। तो वहां से आने के बाद, वहां पर क्या मसला हो गया कि इसने इसको आते आते, यानी कि जो बेलमोंट से बिसेनियो वापस आ रहे, तो वहां पर एक ड्रीडफुल न्यूज आ गई दैट Antonio's ships have not been seen on the sea, कि उसके जो जहाज जो कार्गो ट्रेडिंग में वो समुद्र पे कहीं नहीं दिखाई देते हैं। दे माइट हैव बीन wrecked, they might have been destroyed, they might have been destroyed in the sea। तो शायद वो उनकी संभावना भी हो सकती है कि ऐसी प्रॉब्लम है। तो देन उसके बाद क्या प्रॉब्लम रहती है कि जब ये ड्रीडफुल न्यूज़ पहुंच जाती है तो पोर्शिया वहाँ पर है, तो वहाँ से ये वापस आ जाता, मगर ये निकलने के बाद, किसके निकलने के बाद, जब वहाँ पर यानी कि बेलमोंट से बिसेनियो वापस आ जाता है, तो उसके बाद ये न्यूज़ उनको वहाँ पहुँच जाती है कि इस तरह से एंटोनियो के शिप्स जो हैं वो समुद्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं। दे माइट हैव बीन wrecked, they might have been destroyed, there might have been some trouble, कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। तो इस तरह से फिर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इतनी बात आगे बढ़ाया, तो वहाँ से वापस आ गए। तो ये पहुंचे, तो इन्होंने भी यहाँ पर बताया इनको कि बिसेनियो की नहीं, तो वहाँ से बिसेनियो को उसने एक रिंग दे दी थी। किसने, यानी पोर्शिया हैज गिवन बिसेनियो a sort of ring as a gift। तो जो रिंग थी दैट वाज गोल्ड कलर, गोल्ड थी, तो गोल्ड रिंग इसको दे दी, कहा कि यू शुड ऑलवेज वेयर इट एंड इट विल बिकम अ साइन ऑफ लव फॉर वी पीपल एंड यू शुड नॉट रिमेंबर टू लूज इट, कि अगर आप इसको खो गए तो ये समझ लेना कि दिस इज नॉट अलाउड। तो इसने कहा चलो ठीक है, आई विल टेक इट एज अ टोकन, एज अ गिफ्ट ऑफ लव फॉर फ्रॉम यू। तो जब यहाँ पर वापस आ जाता है बिसेनियो, तो ये वीन्स में पहुंच जाता है, तो इन ऑर्डर टू हेल्प एंटोनियो, वहाँ पर हेल्प करने के लिए, तो इसने कहा कि क्या बात है, तो वहाँ पर इस तरह से बात हो जाती है। लेकिन उससे पहले जब ये वापस आ जाता है बिसेनियो वीन्स में एंटोनियो को हेल्प करने के लिए, तो ये सिचुएशन जो है ये पोर्शिया को ऑलरेडी पता चल जाती है, क्योंकि उसको एंटोनियो से खबर आ जाती है, लेटर आ जाती है। जस्ट सी द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू पर्सन, कि कॉरस्पॉन्डेंस एंटोनियो से जाता है थ्रू लेटर, कि इस तरह से हमारे जहाजों में प्रॉब्लम है, कार्गो ट्रेडिंग पे है, तो हमें 3 महीने का वक्त जो हो गया है, तो आई कैन नॉट, आई थिंक कि द टाइम हैज गॉन एंड 3 months हैव गॉन। तो उस शेलॉक ने कोर्ट में सूट, यानी कि जो केस है, ही हैज टेकन केस टू द कोर्ट अगेंस्ट एंटोनियो that he has not paid him the amount which he had promised him 3 months back, कि जो उसने अमाउंट इससे प्रॉमिस किया था कि 3 महीने के बाद आपको वापस दिया जाएगा, बट ही couldn't because and the time was lapsed। तो उस तरह से ये जब हो गया, ये न्यूज उसको पोर्शिया को पहुंच गई, तो पोर्शिया ने अपने कजन ब्रदर ब्लैरियो से एडवाइस ली। ही वाज अ लायर, ही वाज अ लायर। तो इसने इसको कहा कि इस तरह से बात है, मामला बहुत बिगड़ चुका है, तो ये अब मसला ये है क्या करेंगे। तो इसने इसको कहा कि बलेरियो को कि इस तरह से इसको भी, उसने भी उसको संदेशा भेजा, ही सेंट ए वर्ड, संदेशा भेजा बलेरियो को कि क्या करूं, कि एंटोनियो की हालत जबरदस्त खतरनाक है, कि वो मुसीबत में फंसा हुआ है, सो वी वांट टू हेल्प हिम। तो इसने इसको कहा बलेरियो ने कि, और इससे पहले भी पोर्शिया ने उसको ये अर्जदाश्त की थी, ये संदेशे में कहा कि मुझे सब कपड़े भेज दीजिए, वकील के कपड़े, और जो वकील का क्लर्क होता है उसके कपड़े, सब जो चीजें हैं चाहिए। तो इसने इसको कहा कि ठीक है ले जाओ। तो फिर यहाँ से निराशा जो होती है, तो ब्लैरियो वगैरह ये, तो ब्लैरियो जो इसका कजन होता है पोर्शिया का, तो इसने इसको कहा कि ले जाइए कपड़े साफ वगैरह। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट में कोट करना चाहूंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो लंबा जाएगा 20-25 मिनट का, लेकिन very important aspect of the drama, that is where we can find the conflict is, कि conflict कहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए आप, there he succeeded in winning the hand of Portia, who indeed fell in love with him the moment she saw him and was happy to be asked to marry him. A day was fixed for the wedding. But before the wedding, there came a letter from Antonio bringing dreadful news. Antonio's ships had not been seen at sea
had not been seen at sea, and since the 3 months mentioned in the bond had now passed, the Jew had filed a suit against Antonio, claiming the penalty of pound of flesh. Antonio wrote to see that before he died, he wanted to see his dear Bassanio and bid him farewell. When Bassanio was turned to wings to help Antonio, Portia gave him a ring and asked him to wear it always. Bassanio said he would certainly do so, and as soon as he left, Portia sent word to Blario, a cousin of hers, who was a liar, telling him of Antonio's situation and asking for his advice. Blario quickly sent his advice and also the liar's clothes which Portia had asked for. With these clothes for herself and clothes for a liar's clerk for her maid, पोर्शिया सेट आउट फॉर द विंस. और जब ये कपड़े वहां से इसने इसको दे दिए, दिस इज व्हाट वी कैन से देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन द ड्रामा, इट मींस दैट ड्रामा हैज गॉट इट्स पोजीशन. तो यहाँ पर भी तो जब वहां से इसने इसको एडवाइस मांगी कि वकील होने के नाते ब्लैरियो से, जो कजन था पोर्शिया का, कि मुझे इसके लिए आप ये दीजिए एडवाइस, और उसने उसको कपड़े भी भेज दिए जो उसने मांगे थे इसको, और अपनी नौकर के लिए भी. और फिर उसने यानी कि पोर्शिया ने डॉक्टर बेल्थसर का काम कोर्ट में कर दिया, एंड जो उसकी जो नौकरानी थी, मेड थी निराशा, तो उसने क्लर्क का काम कर दिया. तो इसने शी सेट आउट फॉर द विंड्स. अब उसको जब ये इंफॉर्मेशन मिली, शी स्टार्टेड टू कम बैक, शी स्टार्टेड टू मूव विंड्स इन ऑर्डर टू हेल्प एंटोनियो एंड हिज फ्रेंड्स हु वर इन ट्रबल बिकॉज द केस वाज ऑलरेडी फाइल्ड बाय शाइलॉक अगेंस्ट Antonio that he has failed to pay me the 3,000 ducats which he had already given him on this bond. तो ये जब वहां पर पहुंच जाता है तो कोर्ट में, तो वहां पर इसने इसको कहा, जब ये पहुंच जाती है वहां पर सब तमाशाई बैठे हुए होते हैं कोर्ट में जो भी, तो केस शुरू हो जाता है विंस में. तो ऑल द जजमेंट इज ऑल द पर्सन्स, उसके एंटोनियो के दोस्त भी हैं. तो शैला खुद अकेला चाकू लेकर, वो लंबी चाकू, ही वाज हैविंग अ लॉन्ग नाइफ, ही वाज शार्पनिंग हिज नाइफ इन ऑर्डर टू गेट द पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी. तो कोर्ट में इंतजार करते, तो जो ही ये मिले तो अंदर चले गए. तो वहां पर इसने वकील से कहा, किसने कहा वकील से, इसने इसको क्या कहते हैं, पोर्शिया ने, कि दैट डॉक्टर बेल्थसर इज नॉट गोइंग टू हैंडल दिस केस. तो इसने कहा कि व्हाई, बिकॉज उसने कहा कि डॉक्टर बेल्थसर हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड द कोर्ट दैट आई एम नॉट एबल टू डू सो, take this case as a matter of concern. No, because I am prevented by my sickness. कि मैं बीमार हूँ, तो I cannot present myself before the court in order to give justice or in order to give any judgment over this case. तो फिर उसने क्या किया तो उसने कहा कि मैंने अपने बदले एक वकील भेजा है जो इस केस को लड़ना चाहेगा, और वो उसी के बदौलत इस केस को, क्योंकि मेरी डॉक्टर बेल्थसर की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कोर्ट में जाकर ये केस लड़ सकूं. तो मेरी जगह पर यानी कि पोर्शिया इन डिस्गाइज ऑफ डॉक्टर बेल्थसर, तो उसने तमाम मेल कपड़े पहन लिए और अपनी क्लर्क को भी वो कपड़े पहनवाए, और जो भी मतलब ड्रेसिंग मटेरियल होता है कोर्ट में केस लड़ने का, वो सब इन्होंने पहन लिए. तो डॉक्टर पोर्शिया, यानी कि वी कैन से डॉक्टर पोर्शिया, देयर इज नो वर्ड डॉक्टर पोर्शिया, देयर इज ओनली वर्ड पोर्शिया. तो डॉक्टर बेल्थसर जो है, ही हैज बिकम पोर्शिया हैज बिकम डॉक्टर बेल्थसर एंड इन द कोर्ट. अब ये किसको पता नहीं है, ये इसको बिसेनियो को पता नहीं है. बिसेनियो इज आल्सो देयर, लेकिन शी वाज इन डिस्गाइज ऑफ डॉक्टर बेल्थसर. तो कोर्ट में ही केस शुरू होता जाता है और इंपॉर्टेंट बात इसने आर्ग्यू कर दिया. पहले इंपॉर्टेंट आर्ग्यू कर दिया जब वो शाकू तेज कर रहा था. उसने कहा हाँ तुम्हारा बॉन्ड सही है कि तुमने इससे बॉन्ड में लिखा है कि यू कैन टेक द पाउंड ऑफ फ्लैश, तो ये है, तो आप ले सकते हैं. जब कोर्ट में केस शुरू हो गया और इजाज़त मिल गई कि कब केस पे ऊपर सुनवाई होनी चाहिए, तो वहाँ उसने कहा किसने पोर्शिया ने, इन डिस्गाइज ऑफ डॉक्टर बेल्थसर. तो इसने कहा ठीक है तुम ले लो इसके, यू हैव अ राइट टू टेक द पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी. तो इस पर बहुत खुश हो गया ये शैलाकू, फिर मतलब उस चाकू को ये तेज करने लगा. तो उसके बाद
जब दूसरा केस उठा तो उसने कहा ठीक है ऐसी बात नहीं है। तो यहां पर उसने क्या किया है, यू सी, उसने इसको कहा कि तुम्हें हक है, लेकिन एक बात मुझे बताओ। अब केस आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, तो उसने कहा कि तुम्हें हक है, कोई बात नहीं है, तुम ले जाओ इसके पॉन्ड ऑफ फ्लैश को। लेकिन आपको पता है आपको क्या प्रॉब्लम है कि आपने इस बॉन्ड में, यानी कि ये नहीं लिखा है बॉन्ड में कि आपको एक सर्जन भी साथ होना चाहिए, यानी कि यू मस्ट हैव सर्जन विद यू, बिकॉज यू कैन नॉट टेक योर सेल्फ द पॉन्ड ऑफ फ्लैश फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंटानियो, बट यू हैव टू बी विद द सर्जन। सर्जन कहाँ है? तो उसने कहा सर्जन नहीं है। उसने कहा ठीक है, जब सर्जन नहीं है तो आप कैसे ले सकते हो? और तीसरी बात जो बॉन्ड में लिखी गई है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट ही शुड नॉट ब्लीड टू डेथ। अगर यहां पर एंटानियो मर जाता है, यू हैव रिटन ओनली इन द बॉन्ड दैट यू कैन टेक द फ्लैश ऑफ बॉन्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एंटानियो, बट ही शुड नॉट ब्लीड, लेकिन उसका खून नहीं निकलना चाहिए। दिस वॉज द थर्ड स्टेटमेंट, दिस वॉज द थर्ड आर्ग्यूमेंट that Portia in disguise of Dr. Balthasar presented before the court। और इसने कहा कि तुम ले लो, बॉन्ड में लिखा है कि आप ले लो, लेकिन वहां पर ये नहीं लिखा है, वहां पर आपके पास सर्जन भी नहीं है, और जो तराजू होना चाहिए, यू शुड हैव अ कंप्लीट वेट ऑफ दिस पॉन्ड ऑफ फ्लैश, कितना लेना है, ये भी नहीं है आपके पास, और आपके पास सर्जन भी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि आपके पास सर्जन भी नहीं है, तो आपको ये खून का कतरा इसके जिस्म से गिरना नहीं चाहिए। तो when she argued before the court, counselors, there were many counselors in the court, there was judge, and the court presented that Sherlock, you failed to give justification on your side। तो आपको क्या है, आपने बॉन्ड में ये नहीं लिखा, यू हैव ऑलरेडी रिटन कि आप उसका बॉन्ड में लिखा है कि दैट यू कैन टेक द पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम द बॉडी ऑफ एंटानियो, मगर ये जरूरी है सर्जन आपको साथ होना चाहिए, एंड यू शुड हैव आल्सो वेट फॉर हाउ टू टेक इट। दूसरी बात सर्जन, तीसरी बात ये है कि ही शुड नॉट ब्लीड टू डेथ, एंड तीसरी बात आपने लिखा है फ्रॉम द हार्ट, सो यू नीड टू हैव अ सर्जन, तो वहां लिखा है चेस्ट। सो व्हाट इज इट? सो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द एंटानियो। तो व्हेन केस वाज ऑलरेडी, तो वहां पर ऑब्जेक्शन हो गई, तो उसने ऑब्जेक्शन किया कि नो, मुझे अपनी ये चाहिए, मुझे तो अपना ये काम करना है। तो उसने कहा, जज ने कहा नहीं, यू हैव फेल्ड, बिकॉज अगर आपके पास सर्जन है, आपके पास वेट करने का, आप खुद आ रहे हैं, आर यू ए सर्जन, आर यू गोइंग टू किल हिम, बिकॉज बॉन्ड में लिखा है कि ही शुड नॉट ब्लीड टू डेथ, तो उसको खून का कतरा तक गिरना नहीं चाहिए, तो हाउ इट्स पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू टेक द फ्लैश फ्रॉम द बॉडी ऑफ एंटानियो। सो जजमेंट खत्म हो गई, यानी कि वहां पर केस खत्म हो गया, एंड ही वुन द केस, एंटानियो वुन द केस। लेकिन अब उसने वापस इसको कहा कि नहीं, उसने इसको कहा, शेरलॉक ने बेसानियो से कहा कि नहीं, मुझे आप अपना पैसा ही वापस दीजिए। इसने कहा पैसा क्या लेना चाहते हो, यू हैव फेल्ड इन योर कमिटमेंट, आप तो फेल हो गए, तो आप पैसा क्या? इसने कहा चलो ठीक है पैसा ही, लेकिन वहां से पोर्शिया उठी, उसने कहा इसको कोई पैसा नहीं देना है, नो, we won't give you any sort of money because you have been failed in this situation, कि जो आपने बॉन्ड में लिखना चाहिए था तो यू फेल्ड इन इट, तो हाउ यू आर एबल टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ मनी या आर दिस, तो उसके पास नहीं था। तो आगे केस बढ़ता गया, तो अब वहां पर शेरलॉक को कहा गया कि शेरलॉक अब कोर्ट से बाहर जाने की कोशिश करता है, he wants to leave the court premises, but he was prevented by Portia that you cannot leave, there is one more case against you in the court that you have taken। अब मैं अब उसको भी पढ़ रहा हूं, that the जो लाइन यहां पर लिखी है, that's very important, you cannot leave soon Sherlock, she said, the law has no hold on you, Sherlock, you have plotted against the life of a Christian and citizens of Winds, according to the law of Winds, the punishment for this crime is death, besides half of your goods and money will go to the state of Winds and half to the Intanio, against whose life you have plotted। तो उसने इसको कहा कि तुम ऐसे जा नहीं सकते हो कोर्ट से, because you have plotted against the life and citizens of the Winds, you have plotted against the life of the citizens of the Winds, एंड दूसरी बात यह है कि आप अकेले नहीं जा सकते हो, तो कानून ने आप पर गिरफ्त हासिल की है, यू कैन नॉट लीव द कोर्ट, तो हम आपको अब सजाई मौत सुनाएंगे। तो उसने इसको कहा
कि अपनी सो वहां पर अब बहुत ज्यादा ब्लो लग गया. देयर इज अ टेरेबल ब्लो फॉर शेलॉक के लिए टेरेबल ब्लो था. क्या कि ये जा नहीं सकता है. तो इसने कहा एंटानियो ने कि मुझे नहीं पैसा चाहिए. आई डोंट नीड हाफ अमाउंट ऑफ द मनी और हाफ अमाउंट शुड गो टू द दैट शेलॉक. हाफ अमाउंट शुड गो टू द सिटी ऑफ विंड्स. नो इट उसने कहा कि मुझे नहीं इसका पैसा चाहिए. बट वहां पर एक बात उठी. एंटानियो ने कही. शेलॉक कहा कि जो शेलॉक की डॉटर है शी हैज मैरिड टू ए क्रिश्चियन विदाउट द शी हैड मैरिड. यहाँ लिखा है कि उसकी बेटी की शादी हो गई है अगेंस्ट हिज फादर्स विशेस. यानी कि फादर जहां वो चाहती थी. यानी कि शी वॉज हैविंग सम विश दैट आई शुड मैरी टू ए क्रिश्चियन बट फादर हैज रिजेक्टेड दैट प्रपोजल. और उसने कहा उसने अपने बाप के जो उसकी मर्जी थी उसके खिलाफ उसने मतलब शादी की करवाई. उसकी शादी करवाई. यानी कि जहां पर लड़की की शादी थी शेलॉक की बेटी की शादी थी वहां पर उसको बाप ने नहीं शादी कराई दूसरी जगह करवाई. सो तो उसने कहा एंटानियो ने कहा नहीं द हाफ अमाउंट शुड गो टू हिज डॉटर. The half amount that you are discussing in the court that you are discussing today it should go to it should go to it should go to his daughter. I don't need it. And rest of the amount should go to the city of Winds. And because he has plotted, he is a usurer by profession. He has looted all looted the persons and was giving loan on the pretext of this that you have to pay this amount in return. तो इस तरह से फिर ये केस चलता गया. तो वहां पर फिर शैला को निकलने की कोई संभावना नहीं थी. So when the case was still arguing in the court, when the case was still in the court, कि वहां पर एक और बात भी उठी. अब केस हतमी लास्ट शक्ल पे उठ गया. तो वहां पर बेसेनियो जो था वो अब इस बेल्थेसर को शी वॉज इन डिस्गाइज ऑफ पोर्शिया. तो ये देख रही है. तो इसने एंटोनियो को कहा कि नो हमें इसको देना चाहिए कुछ. किसको? इस पोर्शिया को यानी कि डॉक्टर बेल्थेसर को देना चाहिए कुछ क्योंकि इसने हमारे इस केस में इतनी मदद की है. तो इसने कहा चलो मुझे एक रिंग मिली है. वी डोंट हैव रेडी कैश फॉर हिज फॉर हर और फॉर हिज service in the court, but I have one thing that my wife has given me a ring that this ring is valuable, but I don't think that this ring is too much valuable before me because when my friend Antonio has spared life for me and sacrificed it. तो इसने कहा कि नहीं फिर मुझे यही रिंग इसको देनी चाहिए इस डॉक्टर बेल्थेसर को when she was already पोर्शिया. तो इसने कहा उसको कि तुम ये रिंग ले लो. तो उसने कहा इसको कोई बात नहीं है रिंग. तो फिर उसके बाद उसने उसको कहा कि नहीं मुझे पैसा ही चाहिए मुझे ये रिंग लेने की जरूरत नहीं है. तो सी द सिचुएशन वहां पर कोर्ट में क्या होता है. वहां पर एक और टेक्स्ट का कोर्ट में पढ़ने जा रहा हूं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फॉर द टेक्सचुअल रेफरेंस. आफ्टर पोर्शिया इन डिस्गाइज ऑफ अ लॉयर won the case for Antonio, Bassanio went to thank her. He of course did not know who she was. ये आपको मैंने बताया. Because she was already in disguise of Dr. Balthasar. Who she was. He asked her to accept gift. Portia at first refused to receive. Portia refused कि I don't want to take any sort of gift from you. But when Bassanio insisted, she suggested that he could give her the ring on his finger. कि मुझे ये जो अंगूठी लगी हुई है ये मैं आपको देना चाहता हूँ. Now Bassanio was in difficult situation or Bassanio of difficult situation because he has already promised to Portia that I will never part this ring with any other person. तो उसने उसको कहा कि ऐसी बात नहीं है. Then he was in difficult situation. He has promised. He told Portia that the ring was valueless and he wanted to give her something real value. उसने कहा कि ये valueless है. That I want to give you some real thing, real valuable thing है. But Portia wanted to that very ring. Portia यही ring चाहती थी जो उसने इसको दी थी Bassanio को. Bassanio told her that this ring has been given by my wife and she would not like to part with it. इसने कहा कि मुझे बीवी ने ये रिंग दे दी है तो मैं इससे कैसे इसका व्यापार करूंगा. नहीं. Indeed, she had even made him promise that he would never do so. He appealed to Portia to ask for something else. Ask for something, but Portia pretended to be angry.
तो उसने कहा कि अब ये रिंग, उसने कहा कि नहीं मुझे यही रिंग चाहिए, पोर्शिया ने। तो उसने कहा नहीं मुझे, मैं नहीं दे सकता, मेरी बीवी ने ऐसा किया। देन उसके बाद she left the court in order that she's angry because he has not given me the ring। तो उसने मुझे रिंग नहीं दी इसलिए मुझे नाराज। अब उसके बाद क्या, एंटोनियो thought that she was feeling insulted। तो इसने इसको कहा, एंटोनियो को पता चला इसी कोर्ट में कि शायद इस पोर्शिया की इंसल्ट हो गई है। डियर बेसानियो said एंटोनियो, let him have the ring। इसने कहा कि इसको, एंटोनियो ने कहा रिंग दे दो। शायद इसको लगा कि इंसल्ट, आप इसने रिंग मानी तो आपने कोई और चीज इसको गिफ्ट मांगी, लेकिन नहीं, इसको दीजिए ये। लेट हिम हैव द रिंग, लेट माय लव एंड द ग्रेटेस्ट सर्विस he has done to me be valued against your wife's displeasure। तो अगर आपको मेरे साथ हमदर्दी है, प्यार है, तो अपनी बीवी के लिए ये थोड़ा सा डिस्प्लेजर हो जाएगा। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, दे दो इसको। पुअर बिसानियो हैड टू एग्री, उसने एग्री कर दिया। एंड हाउ कुड ही से नो टू एंटोनियो who had risked his life for him, as I have already told you, so very unwillingly, so very unwillingly gave the ring। और उसने फिर उसके इसी तरह ऑर्डर के बगैर ही इसको रिंग दे दी, कहा ले जाओ आप। just as Bassanio were leaving the court just as Bassanio were leaving the court, came that Antonio's ships, which were thought to have been lost or thought to have been wrecked or destroyed, had safely arrived at the port। वहां पर जब इसने कहा कि चलो कि ये न्यूज़ जो पहले छप गई थी कि पहुंच गई थी कि जो उसके जहाज जो समुद्र में कार्गो ट्रेडिंग के लिए गए थे कि वो दिखाई नहीं दे रहे, आज वो आज देख गए हैं, यानी कि वो वापस आ रहे हैं, वो अब वापस आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। when he did not produce when he did not produce it, she told him with a serious face that he had broken his promise। तो इसने कहा कि अगर आप इसको ये नहीं देना चाहते हैं, यानी कि आपने इसको ये चीज नहीं दी, तो इसका मतलब है she told him कि with a serious face that you have broken your promise, कि जो उसने उसको अगर आपने रिंग दे दी इसको, तो इसका मतलब है कि आपने अपना जो जो वादा था वो आपने तोड़ दिया है। तो इसने क्या, देन एंटोनियो आस्क्ड पोर्शिया फॉरगिव बेसानियो, कि अब इसको फॉरगिव कीजिए, क्योंकि क्योंकि पोर्शिया प्रिटेंडेड टू एग्री। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। She said to Bassanio, here is another ring, see that you don't lose this one too। Bassanio looked at the ring, it was exactly like the first। As he stood there staring at, Portia gave merry laugh and told them the whole story। जब वहां पर ये पहुंच गए तो इन्होंने देखा कि भाई तो रिंग वैसी ही है जो रिंग हमने इसको डॉक्टर बेल्थसर को दिया था, तो ये वही वैसी ही रिंग है, तो इसका क्या मतलब है। तो बिकॉज कि फिर पोर्शिया ने उसको रियल स्टोरी बताई कि मैं कौन हूं और मैंने कैसे आप लोगों का केस लड़ा, यानी कि एंटोनियो का और बेसानियो का, क्योंकि मुझे इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन पहले मिल चुकी थी। अब इसी तरह से नाउ आई वुड लाइक टू tell my students or the students at the PG level, students at the graduation level, they should go through this drama line by line text, तो they will get the proper pleasure of the drama reading। तो इसको हम कहेंगे closet drama। Closet drama is a drama which cannot be enjoyed on the stage। It can be enjoyed through reading, going through the book। So you must go through the book and take it as a good initiative that drama reading is very important, or drama can change your life, drama can make you serious one। So all of my students who are this time watching my video, they can understand that there is one of the dominant theme in the drama, in this play, that is love, hatred and mercy। बिकॉज ये तीनों चीजें आपको मैंने डिस्कस की हैं। मर्सी कहां पर हुई, तो हैट्रिड कहां पर है, और बाकी चीजें कहां पर है। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इट्स बेटर फॉर यू। इतना बड़ा ड्रामा मैंने शॉर्ट में कर दिया है, तो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए भी है, ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो सब स्टूडेंट्स के लिए है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, that enjoy this drama as much as you want। Get the textbook from the market so that you will enjoy it a lot। Thank you very much once again। Assalamu alaikum।